Welcome all of you to class 8 in English. Today we will read the third part of the lesson in the book Honeydew. In this picture, a first picture is described the first part of this lesson. In the first part of this lesson, the writer found a laptop desk and he got it and repaired very well. But in the last drawer he found a envelope and he opened this letter with hesitantly. And the next pic is the envelope open and he described what did he write. He is referred to Macpherson. Macpherson had wrote the words with happiness and described the feeling of the war. And next, third part, the writer feel that he sent this letter is the proper person who was willingly waiting it, कि ये लेटर उस पर्सन को पहुंचाना आवश्यक है जो इसका इंतज़ार कर रहा है. Then in this part the writer sent this letter to the proper person who was Mrs. Macpherson. Then we start the last part. We read out the hard words of this part. First है burned out, destroy by fire, आग से नष्ट हुआ, boarded up माने covered with wooden board, मतलब एक लेयर लकड़ी की जो तख्ते नुमा होती है वो चीज़ को उसको हम boarded up कहते हैं. नेक्स्ट है muddled headed confused man. After 60 years old, a person is confused, not decided exactly and proper time. He take a few minutes, then it's called a muddled headed. And next है lit up, happiness and excitement. जो खुशी और उत्तेजना हम देखते हैं that is lit up in this part. And suffused with a happiness or feel it and then spread all over the face. मतलब हमारे चेहरे पे जब खुशी झलकने लगती है that is suffused with care. Next we will start the part third. I folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope. I kept awake all night. By morning I knew what I had to do. I drove into the Bridport just a few miles away. I asked a boy walking his dog where Copper Beach was. House number 12 turned out to be nothing but a burned out shell. The roof gaping and the windows boarded up. I knocked at the house next door and asked if anyone knew the whereabouts of the Mrs. Macpherson. Oh yes, said the old man in his slipper. He knew her well. A lovely lady. He told me, a bit muddle-headed. But
At her age, she was entitled to be, wasn't she? मैंने वो लेटर फोल्ड करके वापस उस एनवलप में रखा और पूरी रात में जागता रहा। बाय मॉर्निंग एट न्यू, कि सुबह में उठ के मुझे क्या करना है, कि मुझे ब्रिक पोर्ट पे उसको पहुंचाना है। जस्ट अ फ्यू माइल, जो कुछ ही दूरी पे था। मैंने एक लड़के को कहा कि वेयर इज़ कॉपर बीच पास, कि कॉपर बीच कहाँ है, हाउस नंबर 12। तो उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे वहाँ कुछ जले हुए नष्ट हुई चीज़ें दिख रही थी। छतों पे गैप आ रहा था और विंडोज़ की बॉर्डर जो थे, खिड़कियों के चौखटें जो थी, लेयर जो थी, वो भी नष्ट हो चुकी थी। मैंने उनके पास वाले घर को खटखटाया और ये जाना कि वेयर अबाउट ऑफ मिस मैकफरसन, कि मिसेस मैकफरसन आप कहाँ हैं। ओ यस, एक बूढ़े व्यक्ति ने जो स्लीपर पहने था उसने कहा ओ यस, उसने कहा हाँ मैं उसको जानता हूँ, वो प्यारी सी औरत। उन्होंने कहा थोड़ा सा सोच के, क्योंकि वो कंफ्यूज हो रहे थे, क्या वो ही इसी के बारे में पूछ रहे हैं, अन्य कोई लेडी है, लेकिन वो थोड़ा सा कंफ्यूज थे। बट एट हर एज, लेकिन ये सब एक एज फैक्टर में होता है, क्या ऐसा नहीं होता। 101 year old, वो 101 साल की। शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर, कि वो 101 साल की महिला जो इस जले हुए घर में रहती थी जब ये घर चला था। नो वन रियली नो हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल। शी यूज्ड कैंडल रादर देन इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज she always thought electricity was too expensive. The fireman had got her out just in time. She was in a nursing home now, he told me. Burlington House on the Duster Road on the other side of town. कि मैंने उसको जब कहा कि एक 101 साल की महिला जो इस घर में रहती थी, जब आग लगी थी तो कोई भी नहीं जानता कि उसमें आग कैसे लगी थी, लेकिन ये वो हमेशा कैंडल यूज़ किया करती थी, कि वो हमेशा कहा करती थी कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत एक्सपेंसिव होती है, इसलिए कैंडल को यूज़ किया करती थी वो। और अग्निशमन के जो व्यक्ति हैं उन्होंने उसको बाहर निकाला और नर्सिंग होम में उसको एडमिट किया, और अब वो बर्लिंगटन हाउस जो कि दूसरी साइड में है बिल्कुल, वहाँ पे हैं। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम ईजीली एनफ, मतलब यद्यपि मैंने वो बहुत आसानी से नर्सिंग होम ढूंढ लिया था। देयर वर पेपर चेन अप इन द hallway and lighted Christmas tree stood in a corner with a lopsided angel on top. वो कहना चाह रहे हैं कि जब वो वहाँ पहुँचा तो पूरी तरह हॉल जो है वो डेकोरेट हो चुका था, सजा हुआ था पेपर चेन से। एंड आई सेड आई वॉज अ फ्रेंड कम टू विजिट मैकफरसन। तब मैंने उनसे कहा कि मैं मिस्टर मैकफरसन का फ्रेंड हूँ और मिसेस मैकफरसन के लिए क्रिसमस प्रेजेंट लेकर आया हूँ। आई कुड सी थ्रू इनटू अ डाइनिंग रूम वेयर एवरीवन वाज wearing a paper hat and singing. A matron had a hat on too and seems happy enough to see me. She even offered me a mice pie. She walked me along the corridor. मतलब उसकी नज़र एक लेडी पे पड़ी। मैंने देखा वो डाइनिंग रूम के अंदर कुछ पेपर से डेकोरेट कर रही थी, कुछ वहाँ गाना चल रहा था, हैट पेपर पहना हुआ था उसने, और वो उसे देखकर बहुत खुश हुई और उसने उसको माइस, जो एक डिश होती है जो वो लोग क्रिसमस के समय यूज़ किया करते हैं, वो ऑफ़र किया और फिर वो वॉक
एक कॉरिडोर के अंदर चलने लगे। मिसेस मैकफर्सन इज नॉट इन विद द अदर। शी टोल्ड मी शी इज रादर कंफ्यूज टुडे, सो वी थॉट इट बेस्ट if she had a good rest. She was no family, you know, no one visit, so I am sure she will be only too pleased to see you. She took me into a conservatory with wicker chair and spotted plants all around and left me. मतलब वो चलते हुए अपने एक्सप्रेस कर रही थी कुछ फीलिंग्स को कि मिसेस मैकफर्सन जो है बहुत कंफ्यूज्ड हैं और इसीलिए वो अपने आप को, हम ऐसा सोचते हैं, अपने आप को अच्छा महसूस नहीं कर रही थी। और वो, उनकी यहाँ फैमिली भी नहीं थी, किसी को जानती भी नहीं थी, कोई कहाँ घूमना फिरना भी नहीं था उनका यहाँ, इसलिए मैं ऐसा सोचती हूँ कि वो तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगी। और हमने इसीलिए उनको एक खुले स्थान पे, कंजर्वेटरी एक खुला स्थान जहाँ पे गार्डन होगा, प्लांटिंग होगी, एक ओपन प्लेस जहाँ पे उनको एक वीकर चेयर के ऊपर बिठा के वहाँ रखा हुआ है। पॉटेड प्लांट अराउंड, उनके चारों तरफ गमले हैं और मतलब हरियाली नुमा एक खुला स्थान है, कंजर्वेटरी स्थान, जहाँ पे उनको हमने छोड़ दिया है। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन द व्हील चेयर, हर हैंड्स फोल्डेड इन लैप्स, शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पेंट into a whispery bun. द लेडी, वो एक व्हील चेयर के ऊपर अपने दोनों हाथ लैप्स में गोद में रखे हुए थी और उनके हेयर जो हैं वो वाइट हो गए हैं और उन्होंने अपने चूड़ा बना रखे। बन्स मीन्स चूड़ा, जो लेडीज़ बनाती हैं अपने हेयर को फोल्ड करके, दैट इज़ बन। She was gazing out at the garden. Hello, I said. She turned and looked up at me vacantly. Happy Christmas, Connie. I went on. I found this. I think it is ours. It is yours. As I was speaking, her eyes never left my face. I opened the tin box and gave it to her. That was the moment her eyes lit up with recognition and her face became suffused with a sudden glow of happiness. I explained about the desk, about how I had found it, but I don't think she was listening. She was gazing out at the garden. वो गार्डन में कंटिन्यूसली देखी जा रही। गेजेस मीन्स एक निगाह जब सेट कर लेते हैं, घूरना किसी चीज़ को, दैट्स गेजिंग। तो वो कंटिन्यू गार्डन के बाहर देखे जा रही थी। उन्होंने उनको अभिवादन किया, तब वो मुड़ी और उन्होंने खाली निगाहों से उसको देखा, मतलब अननोन थी, जानती नहीं थी। हैप्पी क्रिसमस कॉनी, लेखक ने क्या कहा, हैप्पी क्रिसमस कॉनी। आई वेंट ऑन, और मैं उसके पास गया। आई फाउंड दिस, मैंने ये देखा और सोचा, तुम्हारे लिए ही सोच रहा था। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस, मैंने महसूस किया कि उसकी आँखें मतलब कभी नहीं देख सक रही थी, वो वाला दृश्य उसने देखा उसके फेस से ये लग रहा था। उसने वो टिन का डब्बा खोला और उसको दिया। ये वो क्षण था जब उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और उसके फेस पे सफ्यूज्ड विद द सडन, और अचानक से चेहरे पे वो उत्तेजना नज़र आई खुशी की।
और जब मैंने उसको डेस्क के बारे में डिस्क्राइब किया, बताया, तो मैंने पाया, लेकिन मैं ये नहीं सोच पा रहा था कि वो मुझे सुन भी रही है या नहीं। वो अपने एक्साइटमेंट में उसका जो दिमाग था, फेस था, वो सब उसमें बॉक्स में और उस लेटर में अटैच था। फॉर अ वाइल शी said nothing but stroked the letter tenderly with her fingerprint. वो कुछ नहीं कह रही थी, उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो उस लेटर को बड़े कोमलता से अपने हाथों से, कोमल हाथों से खोलने की कोशिश कर रही थी। सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, और अचानक से वो मतलब मेरे तक पहुंची और मेरे हाथ उसने अपने हाथों में लिए। हर आइज़ वर फिल्ड विथ टीयर्स, उसकी आँखें आंसुओं से भर गई। यू टोल्ड मी यू हैड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, शी सेड, एंड हियर यू आर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन। इन दिस पैराग्राफ, जब मतलब कहते हैं ना, ये इस कन्फ्यूज्ड मैन की होती है, कन्फ्यूज करती है ये स्थिति, तो ऐसे ही वो कन्फ्यूज थी। वो उसको अभी अपना जिम मान रही थी, और इसीलिए वो जब लेटर को देखती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और वो उसको कहती है कि मुझे पहले से पता था कि मुझे ऐसा ही क्रिसमस प्रेजेंट मिलेगा, सबसे बड़ा प्रेजेंट मिलेगा क्रिसमस के दिन। माई डियरेस्ट कॉनी, प्रिय, मेरे पास आओ और बैठो। आई सेट डाउन बिसाइड हर, मैं उसके पास में बैठ गया। एंड शी किस्ड माई चिक। आई रीड योर लेटर टू ऑफन जिम एवरी डे। आई वॉन्टेड टू हेयर योर वॉइस इन माई हेड। It always made me feel you were with me, and now you are. Now you are back. You can read it to me yourself. Would you do that for me, Zim dear? I just want to hear your voice again. I had loved that so much, and then perhaps we will have some tea. I have made you a nice Christmas cake, marzipan all around. I know how much you love marzipan. इस पैराग्राफ में वो उसको ऐसे ट्रीट करती है एज अ जिम मैकफरसन। वो कहती है मेरे पास बैठो, और वो उसके पास बैठ गया। वो उसको उसके चिक्स को किस करने लगी और उससे कहने लगी कि ये लेटर में डेली अक्सर प्रतिदिन पढ़ती थी, और मैं अब ये चाहती हूँ कि अब तुम ये अपनी आवाज़ में मुझे पढ़ के सुनाओ, ताकि मैं हमेशा जो फील करती हूँ तुम्हारे साथ बैठकर फील करूँ। और एंड नाउ, और अब आ गए हैं, तो यू आर नाउ बैक, यू आर वापस आ गए हैं, तो आप अपना लेटर पढ़िए। और हम उसके बाद मतलब बहुत सालों से मैं आपकी आवाज़ सुनने के लिए बेचैन थी, इसलिए मेरे प्रिय, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। अब यह हम इसके करने के बाद फिर चाय पियेंगे, और मैंने तुम्हारे लिए क्रिसमस पर केक बनाए हैं मार्जिफन का, जो तुम्हें बहुत पसंद था, और मैं जानती हूँ तुम्हें मार्जिफन बहुत ही ज़्यादा पसंद है। थैंक्स to everyone, and now it's a homework time. Write the meaning of following words: lit up, second, suffused with, third, burned out, fourth, muddle-headed. And then questions: who did Connie's Macpherson think her visitor was? Who did Connie's Macpherson
कि मैकफर्सन क्या सोचती थी कि विजिटर कौन था? कौन था विजिटर? ऑथर, राइटर। ओके, रियल में जो विजिटर था वो ऑथर था, लेकिन मिसेस कॉनी जो थी, मिसेस मैकफर्सन, कॉनी मैकफर्सन, वो ऐसा सोचती थी, ही थॉट ही इज द हस्बैंड जिम मैकफर्सन। Students, you all of you done your homework part 1, part 2 and part 3, and then next time we will solve the question answer and fill in the blank in next session. Thank you.